Good morning. कैसे हो? How are you? All good? Yes, sir. Very good. Okay, so we'll be continuing with the trigonometricals what we did last. I hope what we have done so far is clear. Any doubts on that? No doubt, sir. चलो, so आज हम second method करेंगे. First was what we have done the density correction, and we were changing the density to the temperature of the volume of oil. So let me take you back to the board. I hope all of you can see the board. Yes, sir. Chalo. So back to our basic, we have understood mass is equal to volume into density. Now in this case, we had realized that this equation is true provided your volume and density both are at same temperature. Now what we have done previously, we converted the density to the temperature of volume. Example, I have 1000 meter cube of oil at 30 degrees centigrade, and the density, if I know, was at 20 degrees centigrade. So we were converting density from 20 to 30, and then we were calculating the mass. Now this was the first method. The second method, what we do instead of correcting the density, now they give you density at one standard temperature, what we call 15 degrees centigrade. Now this density which the terminal provides you, or it will be given in your question paper. Now this density is calculated in the laboratory in vacuum conditions. So that is the exact density. So basically the density in vacuum at 15 degrees centigrade, example, is 0.85 is given. Now if I have a 1000 meter cube, I load it and it is at 30 degrees centigrade. Now we want to convert that 1000 meter cube will be how much at 15 degrees centigrade. Now to do this, to convert this 1000 meter cube at 15 degrees centigrade, we use ASTM tables. I hope all of you have the ASTM tables with you. Soft copy है sir. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. So just take out the table 54. From ASTM table, you take out table 54. Now this table 54, if you see, I think you must be having in front of you. Basically this table, on top the density at 15 degrees centigrade is given, and this density is given, say 0.85, 0.86, 0.87, and here on this side the temperature is given 1, 2, 3, 4, 10, 25, say 30 degrees centigrade. Now my oil is at 30 degrees centigrade, so I go to 30 degrees centigrade and I see the density at 0.85. So here you will get some factor, say 0.9880. Point factor is 1, sir.
No, factor must be under 0.85 at 30 degree centigrade. Just check the factor is 0.9880 होगा. Yes, sir. 0.9881. That is 0. Yeah, 9880, 9881. 880. So 85 881. I just 0 is 9880. 9880 are. Yeah. Yes, sir. 980. Okay, I'll show you that. 0. कोई बात नहीं, I'll just show you this table here. This is your table 54, how it looks like. Now we have seen the density is 0.85. So here the densities are given on top. Now what we see 81, 81, 82, 83. So we go to 85. Now we go to table, next page. So the density is 0.85 and we go to the temperature 30 degree. Example, 30 degree temperature here. 0.9880. 0.9880. Yeah, so you can see this here on your slides. It is 9880, isn't it? So basically this is what your ASTM table is. If you on top you see the densities, various densities, and this is observed temperature, and this is the factor what we have taken out from there. Now back here, now we got this factor, what we call volume correction factor. Now this factor what we have taken out is known as the VCF. Now we have got the value of VCF as 9880 and my gross observed volume was 1000 meter cube, which is at 30 degree centigrade. Now when I multiply this GOV with VCF, what do I get? Is the volume at 15 degree centigrade. If I multiply this 1000 by this factor, what is known as the VCF, we get GSV, that is called gross standard volume. Means in simple language, now if you multiply, how much you got? 988 meter cube. The oil which was measuring 1000 meter cube at 30 degree centigrade will be measuring 988 meter cube at 15 degree centigrade. Naturally, if the temperature decreases, the oil is going to contract, isn't it? So you get this much volume here. GSV आपके पास 988 आ गया. GSV, please try to understand, it is nothing. It is just the volume of oil at 15 degree centigrade. And by this table 54, what we have done, we got the factor to convert the volume of oil to 15 degree centigrade. Now the density is given to me also at 15 degree centigrade. Now I got the volume also at 15 degree centigrade. Now if I multiply this, I will get the mass 988 into 0.85. 839.8. 839.8. Now this mass is in metric tons, but I have applied the density in vacuum, so this will be basically mass in vacuum. Now here we are using the term mass and weight is the same thing. So basically mass is in vacuum, weight is in air. But this mass in vacuum has got no meaning to me on the ship because I need the mass in air so that I can calculate my draft, I can calculate my stresses, trim, everything. So we need the weight in air. Now to calculate the weight in air, I need density in air. Now to calculate the density in air, the density in vacuum is given to me. Now to calculate density in air, it is very simple that I apply this is called a buoyancy factor. From this, if I subtract this buoyancy factor 0011, I get 8489. Yeah, density in air 0.8489. It is called WCF, weight correction factor, or in layman's term, it is known as the density in air. Now, if I multiply to get the weight in air, फैक्टर कौन से वाला है सर? कहाँ से है? Yeah, this factor remains same. It's called buoyancy factor. This is the effect of atmosphere on the density. ये कांस्टेंट है ना सर, हमेशा यही रहेगा ना सर? Yes, ये same रहेगा, ये नहीं change होगा.
or you can get this density also from table 56. ASTM टेबल के टेबल 56 में जाइए, वहां पे भी आपको ये फैक्टर और ये टेबल इसी फैक्टर के बेस पे बना है. तो नो नीड टू वेस्ट टाइम, बट एटलीस्ट यू शुड हैव अ नॉलेज. कोई बाई चांस आपको पूछ ले कि यार ये WCF कहाँ से मिलता है, सर टेबल 56 ऑफ ASTM टेबल, और it is basically based on this buoyancy factor. So if you subtract from the vacuum, I get this density. Now weight in air is simple GSV into WCF. 988 into 0.8489 will give you metric ton in air. Very simple. 8.13. या तो जितना भी आएगा, वेरी सिंपल कैलकुलेशन. यार मेरे को मास चाहिए था, instead of converting the density, nowadays they give you a density because they found this is a better method, more accurate, that you take out the density of the oil in the laboratory under vacuum conditions. टेबल बना दिया उन्होंने 54, get the VCF. so basically हमने किया क्या, mass is equal to GOV into VCF into WCF. ये एक इक्वेशन है जो आपको याद रखनी है, इसी के साथ आप सारा कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं. अब ऊपर क्या है, दिस GSV बेसिकली क्या है, GOV into VCF, इसे हम GSV कह देते हैं, isn't it? तो आप कुछ भी लिख सकते हो, वेट इन एयर इज इक्वल टू GSV into WCF और GOV into VCF into WCF. वेरी इजी, आई कैन कैलकुलेट द मास. अब आपने ये कैलकुलेट कर लिया, ओके, फ्रॉम वॉल्यूम यू कैलकुलेटेड द वॉल्यूम एंड यू केम टू नो द मास. नाउ सपोज आई टेल यू you have 1000 metric tons of oil. You have 1000 metric ton of oil. What will be the volume of this oil? What will be the volume of this oil at 28 degrees centigrade? Density is same, 0.85. यहाँ पे था, I calculated the volume GOV. Of course, I have given you, so we calculate normally GOV by length, breadth, and height. Isn't it? GOV is equal to length into breadth into height of oil. वो हमने एग्जाम्पल 1000 मीटर क्यूब था. अब मैं कहता हूँ आपके पास 1000 मेट्रिक टन ऑयल है एंड यू वांट टू नो, आप उसको लोड कर रहे हो 28 डिग्री पे, एनी टेम्परेचर यू आर लोडिंग, सो व्हाट विल बी इट्स वॉल्यूम at that temperature? डेंसिटी एट दैट टेम्परेचर से करना पड़ेगा सर. सेम डेंसिटी से 0.85. WCF आपने कैलकुलेट किया हुआ है, कैसे करेंगे? पहले तो सर WCF डिवाइड कर देते हैं तो ये अपना वेट इन एयर आ जाएगा, सॉरी वेट इन वैक्यूम आ जाएगा. 1 मिनट, वेट इन वैक्यूम नहीं आएगा, आपने वेट को वेट डिवाइडेड बाय WCF. ओके, वेरी गुड. दिस विल गिव यू व्हाट? ये आपके सामने इक्वेशन है. वेट इन एयर आएगा ना सर? GSV सर. GSV आ जाएगा. आपके पास वेट है, आपने वेट को WCF से डिवाइड किया. अब मैं इसको मिटा Mass देता in vacuum. It will give mass in vacuum. ग्रॉस स्टैंडर्ड वॉल्यूम. ये आपके पास इक्वेशन है. अब मैं WCF को नीचे लेके आया हूँ खाली. What I have done? I have brought WCF यहाँ पे. क्या रह गया मेरे पास? GSV मिलेगा सर, ग्रॉस GSV. स्टैंडर्ड वॉल्यूम. GSV रह गया मेरे पास. Weight I divide by WCF is equal to GSV, because यही वाली इक्वेशन है ना, weight in air is equal to GSV into WCF. अब मेरे पास वेट है, उस वेट को मैं, वेट कितना है 1000, I divide by WCF 0.8489, जो वैल्यू आएगी दैट विल बी बेसिकली GSV, मींस वॉल्यूम एट 15 डिग्री सेंटीग्रेड. चलो कैलकुलेट कीजिए, 1000 डिवाइड बाय 0.8489. 1177995. 1177.99. 1177.19.
सर This is डबल लाइन आ रहा है. सर 995.995. चलो इसको 8 कर देते हैं, 1078 कर देते हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल ही कर रहे हैं. सो इट इज 1178 मीटर क्यूब. मींस 1000 metric ton is measuring 1178 meter cube at 15 degree centigrade. GSV is means 15 degree centigrade. बट मेरे को चाहिए वॉल्यूम 28 पे, बिकॉज मेरे ऑयल का टेम्परेचर व्हाट आई एम गोइंग टू लोड एट लोड पोर्ट इज 28 डिग्री. इसके लिए सिंपल, अब हमने ये क्या इक्वेशन बनाई थी, लुक एट दिस इक्वेशन. GSV इज इक्वल टू GOV इंटू VCF. यही थी ना इक्वेशन. GSV इज इक्वल टू GOV इंटू VCF. अब इसी इक्वेशन को मेरे को चाहिए GOV. नाउ मेरे को चाहिए GOV at 28. I will take out VCF at 28. I find out the VCF at 28 and मैं 28 के VCF से ये जो मेरा GSV है, मैं VCF को यहाँ पे लेके आता हूँ. GSV डिवाइड बाय VCF at 28 degree centigrade will give me what? GOV at 28 डिग्री. वही मेरे को चाहिए. मेरे पास GSV है. अब इसी चीज को मैं लेता हूँ 1178 और I write it like this. GSV डिवाइड बाय VCF at 28 जहां मेरे को GOV चाहिए इज इक्वल टू GOV at 28. फर्दर हमारी इक्वेशन 1178 डिवाइड बाय जस्ट 0.9896. if you divide 1190.375. 0.38. चलो ठीक है, कुछ भी लिख लेते हैं. सो मेरा वॉल्यूम एट 28 डिग्री आ गया. GOV एट 28 डिग्री आपने निकाल लिया. करेक्ट. अब हमारे पास दो चीजें बन गई. क्या एक तो मेरे पास अलेज है. इफ द अलेज इज गिवन टू मी देन आई कैन गो फ्रॉम अलेज टू व्हाट वी कॉल one is allege, two volume, two weight. तो हमने पहले किया था कि हमने मेट्रिक टन निकाले, हमें allege पता थी. आई गो टू GOV, आई गॉट द वेट. सेकेंड केस में हमने क्या किया, हमें वेट पता था. फ्रॉम वेट आई वेंट टू वॉल्यूम एंड आई वेंट टू allege. यही दो मेथड किए. लेट्स सॉल्व इज योर ESTM. आई होप क्लियर. एनी डाउट्स ऑन दिस? डोंट वरी, आई शो यू द स्लाइड. उसमें स्टेप्स लिखे हैं. जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यार हमने किया क्या है. हमें अलेज पता है. इफ आई गिव यू द टैंक हैज सो मच ऑफ अलेज, आई कैन कैलकुलेट द वॉल्यूम एंड फ्रॉम वॉल्यूम टू वेट के लिए VCF इंटू WCF मेरे पास वेट आ गया. Suppose if I know that you are going to load 1000 ton in that tank, how much will be the volume? How much will be the allege? What should be the allege? I should stop loading. Weight, I divide, go to volume. How? Weight divided by WCF will give me the GSV. GSV divided by this, I get the volume or whatever you write here, GOV. Weight to GOV. And once I have the GOV divided by area, you get the allege. ठीक है. सो एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं इसके साथ ही. सर आपने जो WCF सर ये लिखा है, हाँ जी बोलो. सर वो कॉर्नर में WCF जो आपने लिखा है उसमें ये -0.0011 कहाँ से लिया सर? बच्चे ये फैक्टर होता है. दिस इज अ buoyancy factor which is standard, which is again calculated by these people
who have been dealing the oil, क्या आपके एटमॉस्फेयर का डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ता है. सो इट इज अगेन अ स्टैंडर्ड फैक्टर व्हाट वी कॉल अ बुओयेंसी फैक्टर, द इफेक्ट ऑफ योर. अब आपने क्या किया है, डेंसिटी वैक्यूम कंडीशंस में निकाली है. लेबोरेटरी में आपने किसी भी ऑयल को ले गए and you created a total vacuum, no atmosphere affecting that, and आपने वो डेंसिटी मुझे दे दी 0.85. अब जब उस ऑयल को मैं अपने एटमॉस्फेयर में लोड कर रहा हूँ, हम तो जब टर्मिनल, वहाँ तो नॉर्मल एटमॉस्फेयर, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है कुछ ना कुछ तो आपकी डेंसिटी को इफेक्ट करेगा. सो वो फैक्टर इसे कहते हैं. सो इट इज जस्ट अ बुओयेंसी फैक्टर विच इफ यू सबट्रैक्ट यू गेट द डेंसिटी इन एयर. Density in air will be definitely less because the buoyancy is acting on that. Atmospheric pressure is creating a buoyancy. सर तो मतलब इसको डायरेक्टली माइनस कर देंगे तो ये टेबल 56 से देखने जरूरत नहीं है. Very सेम ही. very right, very right. ओके ओके सर. मैं आपको टेबल 56 भी दिखा देता हूँ. Okay, so I just go back to your slide. That if we see. सर एक बार ये फिर से लास्ट लाइन जो लिखा है सर आपने, जब हमने सर, इसको वॉल्यूम निकाला एट डिग्री जीएसवी निकाला सर, उसके बाद कैसे किया सर, एक बार फिर से बताइएगा. Okay. जीएसवी के बाद सर. चलो आपको यहाँ तक समझ आ गया. वेट इन एयर निकाला हमने एंड हमने ये जीएसवी निकाल लिया. चलो मैं यहाँ से रब आउट करता हूँ. यू गो बैक अगेन. यार यहाँ तक तो हमें समझ आ गया कि हाउ टू कैलकुलेट द वेट. वेट इन एयर इज जीएसवी इनटू डब्ल्यूसीएफ व्हिच विल गिव मी द मेट्रिक टन्स. अब मेरे पास क्वेश्चन आ गया कि सपोज इफ आई हैव 1000 मेट्रिक टन, इसका मेरे को वॉल्यूम निकालना है एट सम पर्टिकुलर टेम्परेचर से 28 डिग्री सेंटीग्रेड. Now what I do, I have the weight. I have the weight in air. मैं इसी इक्वेशन को लेता हूँ. The weight in air is equal to GSV into WCF. मेरे पास वेट है, मेरे को चाहिए क्या, वॉल्यूम है 28. तो सबसे पहले मैं इस वेट को WCF से डिवाइड करता हूँ. मैं ये WCF यहाँ पे ले आता हूँ, डिवाइड बाय WCF. तो मेरे पास क्या रह गया, वेट डिवाइड बाय WCF इज इक्वल टू GSV. वॉल्यूम एट 15 डिग्री. वॉल्यूम एट 15 डिग्री. वेरी गुड. अब मेरे को ये भी पता है कि यार ये GSV क्या चीज होती है. GSV इज नथिंग, इट इज बेसिकली GOV into VCF, isn't it? यही है ना, यहीं पे हमने किया था. ये मेरे पास GOV, ये मेरा GOV था 1000 एंड इसका मैंने VCF निकाला था 0.9880 एंड आई नो GSV. एक स्टेप में और लिख देता हूँ, GSV इज इक्वल टू GOV इंटू VCF. वही मैंने किया, GOV इंटू VCF, तो मेरे पास GSV आ गया था. अब इसी इक्वेशन को GSV मेरे पास है, ये जो GOV एंड VCF है, अब मेरे को चाहिए GOV एट 28. तो मैं 28 पे ही VCF निकालता हूँ बिकॉज आई नो VCF इज कंट्रोल्ड बाय टेम्परेचर. दो चीजें चाहिए, टेम्परेचर एंड द डेंसिटी. डेंसिटी मेरे पास है, टेम्परेचर मेरे पास 28 है. सो आई कैन टेक आउट द VCF एट 28. नाउ GSV divided by VCF at 28 will give me GOV at 28. सर इसी स्टेज पे पूछना है सर क्वेश्चन. ये सर डेंसिटी एट 28 डिग्री से डायरेक्टली डिवाइड कर सकते हैं 53 टेबल में से देख के. नो, वो थोड़ा आपको गलत देगा बिकॉज वी आर यूजिंग दिस टेबल 54. बिकॉज अगर वहां पे हम डेंसिटी यूज करते हैं दैट मे बी अ डिफरेंट डेंसिटी. टेबल 54 थोड़ा सा अलग है, डेंसिटी कन्वर्शन है प्रॉब्लम उसमें. हाँ 53 में सर वो डेंसिटी कन्वर्जन तो 28 की निकाल के वैसे पूछा था. या नो, सो बेटर वी डू दिस वे. सिंपल वाला है कि हम इसी मेथड से करें, उसमें हो सकता है हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन. ये जब सर्वेयर आता है तो चीफ ऑफिसर एंड सर्वेयर एक बात कर रहे होते हैं कि कौन सी टेबल्स कैलकुलेट कर रहे हो, तो क्या बात करते हैं, मतलब व्हाट दे आर डिसाइडिंग. Table 54. Now this table 54 basically has got two, table 54A and table 54B. जहां तक आपका एक्चुअली STM टेबल कंसर्न है, आपके पास बुक है तो कंसोलिडेटेड पेज ही छोटे वाले, उसमें खाली उसने टेबल 54 दिया है.
Actually, there are two tables, 54A and 54B. 54A is for crude oils and 54B is for the white oils, for the products. Product. Yeah, generalized products. और सर केमिकल्स के लिए फिर Chemicals के लिए भी I think 54B you can use. 54A is for crude oils. Okay. So ओके ये सर yeah, but exam के लिए do not get confused that you start looking into. अब आपके पास जो टेबल अगर उसमें भी आप देखोगे तो आपको सिर्फ टेबल 54 ही दिया है, जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग कि 54 क्या दे रहा है. 50 और कुछ नहीं कर रहा. 54 इज जस्ट गिविंग मी द VCF, जस्ट गिविंग मी अ फैक्टर, अ करेक्शन फैक्टर with two given things. What is density at 15 degree in vacuum and second thing against the temperature. यही मेरे को चाहिए यार. मेरे पास GOV है, मैंने ऑयल लोड किया, I took the temperature 30 डिग्री मेरे को टेम्परेचर मिला. Now I want to calculate. Now ये चीज क्यों शुरू हुई? I'll just go back 5 minutes. I'm just rubbing it out just to make you think. Maybe most of you may be aware, but just to refresh you. Suppose I load oil. रस्तनूरा में मैं लोड करता हूं. ये मेरा टैंक है. Now I loaded 1000 मीटर क्यूब एंड मैंने चेक किया टेम्परेचर वाज 30 डिग्री सेंटीग्रेड. नाउ आई गो टू यूरोप एंड सेम ऑयल. अब जब मैं इसका अलेज चेक करता हूं, यहाँ पे तो मेरे पास जितनी भी अलेज मिली, सपोज से 1 मीटर. व्हेन आई गो टू द यूरोप, वहां पे टेम्परेचर मेरे तेल का 10 डिग्रीज आ गया. अब जब मैंने अलेज चेक की तो मेरे को तो अलेज हो सकता है 1.2 मीटर मिले. अब जब मैं 1.2 मीटर से वॉल्यूम कैलकुलेट करता हूं तो 1000 नहीं मिलेगा. अब जो शिपर है वो तो कहता है मैंने तो आपको 1000 मीटर क्यूब दे दिया, आपके टैंक में लोड कर दिया. अब यहाँ पे जब मेजर किया तो हो सकता है वो मेरे को 950 मीटर क्यूब मिले. इफ वी हैंडल और इफ वी यूज ओनली GOV. अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? वी आर बेसिकली डूइंग, ये भी GOV था, ये भी ऑब्जर्व्ड वॉल्यूम था, विच इज एक्चुअली रॉन्ग. क्यों? कि टेम्परेचर ने आपके ऑयल के वॉल्यूम को कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है. सो अदरवाइज अगर हम GOV हैंडल करते देन वन ऑफ द पार्टी विल लूज. उन्होंने कहा यार ये सिस्टम तो ठीक नहीं है. सो देन दे फाउंड कि ओके व्हाट डू वी डू. आपने ऑयल लोड किया 1000 मीटर क्यूब 30 पे, प्लीज कैलकुलेट द वॉल्यूम. नॉर्मली आप शिप में यू ओनली कैलकुलेट द मीटर क्यूब, यू ओनली कैलकुलेट द GSV. अब मैं इसका GSV निकालता हूँ, मीन्स 15 डिग्री पे निकालता हूँ. 15 डिग्री पे मैंने देख लिया इट इज 980 मीटर क्यूब एट 15 डिग्री सेंटीग्रेड. अब मैं चल पड़ा, आई गो टू यूरोप. अब जब मैं अलेज लेता हूँ, जो मर्जी अलेज आनी चाहिए, GOV 950 आया. I again apply the VCF here to calculate the temperature, to calculate the volume at 15 degree. You will again get 988 meter cube at 15 degree centigrade. GSV will be same. 15 डिग्री पे दोनों ऑयल का, लोड पोर्ट डिस्पोर्ट का ऑयल आपको वॉल्यूम सेम मिलेगा. नो डिस्क्रिपेंसी. आई एम इग्नोरिंग एवरीथिंग, ऑल ओशियन लॉस नथिंग, उसको छोड़ दीजिए. तो ये तेल ऑयल टू ऑयल हमने किया. जैसे यस दिस इज द, इसके लिए आपका ये सिस्टम शुरू हुआ. ओके सो आपने देखना आपके जो सर्वेयर्स हैं एट द एंड ऑफ द नीचे दे राइट ओनली GSV so much, ग्रॉस स्टैंडर्ड वॉल्यूम लोड पोर्ट पे, ग्रॉस स्टैंडर्ड वॉल्यूम ऑन अराइवल डिस्पोर्ट. उसमें अगर डिस्क्रिपेंसी आएगी, हाँ फिर आपका ऑयल या तो ओशियन लॉस हुआ, वेपोराइज हुआ, या फिर कुछ और. चलो आई होप क्लियर यहाँ तक. एक छोटा सा मतलब ये 15 डिग्री से स्टैंडर्ड है ना सर? हाँ या दैट इज नॉर्मली. सो मोस्ट ऑफ द पोर्ट्स, पूरी वर्ल्ड नहीं है बट सम पोर्ट्स, साउथ अमेरिकन पोर्ट्स एंड ऑल, दे स्टिल मे गिव यू डेंसिटी एट 20 डिग्री. फिर हमें प्रीवियस मेथड से करना है. बट मोस्ट ऑफ द पोर्ट्स, US, पर्शियन गल्फ, कैनेडा एंड ऑल दैट, दे ऑल गिव यू डेंसिटी एट 15 डिग्री सेंटीग्रेड और API. Normally they give you API or 15 degree centigrade. So I will touch on that when we do a question. What is API? API is nothing. It is a American Petroleum Index. Americans अलग हैं,
they got a different way of, it is basically a density. So higher the API, lighter is the crude, lesser the API, heavier is the crude. So one API को देख के ही they can make out whether the crude is light or heavy. But वो भी हम convert कर सकते हैं. Table 3 में अगर हम जाएं, if the API is given, some terminals may give you the API is 30. Now if you look at table 3 of ASTM, so you can convert API 30 के सामने आप density at 15 degree centigrade, वो भी मैं निकाल सकता हूँ, टेबल में दी है density at 15 degree centigrade, कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगी 872. So I pick up from there and enter the table 54 and do my normal calculation. चलो जब क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन मैं रखा उसमें जिसमें API दी हुई है, we will do that. So I want you to do a quick, very small one जो हमने किया है. I'll give you the volume, density and temperature. So find out the mass. इसमें जब API से कैलकुलेट करते हैं वेट और डेंसिटी से, तो उसमें थोड़ा बहुत तो डिफरेंस आता है सब. नहीं, API और yeah, API and density with 15 degree, because if they give you API, I will convert that. Basically आना नहीं चाहिए, फर्क नहीं आना चाहिए. बहुत माइनर आता है, लेकिन आता है ऑन बोर्ड भी चेक किया, थोड़ा बहुत आता है. Yeah, because हम API से आगे वापस we are picking up the density at 15 degree centigrade, because हमारे पास 15 degree centigrade पे density तो है नहीं, तो हम टेबल से ही निकाल रहे हैं, isn't it? Because table 54 के लिए तो मेरे को density at 15 degree centigrade ही चाहिए. So if I show you, now this is your table 54, and if I go to table 53, or sorry 03, table 3 पे जाऊं तो वहाँ पे आपको table 3, if you see this here, they have given me API and density at 15 degree. तो मैं यहाँ से भी पिकअप कर सकता हूँ if they give me the API at 16 degree Fahrenheit. अब ये थोड़ा सा फर्क है कि 60 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 15 डिग्री सेंटीग्रेड में, तब आपका ये थोड़ा सा फर्क है, बिकॉज ये API जो है आपको 60 डिग्री फ़ारेनहाइट पे दी है. सो दिस इज व्हाट इफ यू गिव मी द API 19, API इज 19, तो मैं यहाँ से 9397 आपकी डेंसिटी पिकअप कर लेता हूँ टू एंटर टेबल 54, बिकॉज टेबल 54 के लिए मेरे को VCF निकालने के लिए बेसिकली डेंसिटी एट 15 डिग्री चाहिए. चलो ये जो ये API और डेंसिटी वगैरह सब जो मतलब दिया हुआ है वो सारा वैक्यूम में दिया हुआ है ना? यस यस, API भी सब कुछ चीजें क्वेश्चन भी आपको वैक्यूम में ही देगा. सो दिस इज व्हाट वी हैव डन. आप इसको लिख सकते हो, कैलकुलेशन बाय ASTM टेबल, अलेज टू वॉल्यूम टू वेट, ऑब्टेन द ऑब्जर्व्ड वॉल्यूम, GOV लेंथ ब्रेड्थ इनटू हाइट, फाइंड आउट द VCF फ्रॉम टेबल 54, GSV इज इक्वल टू GOV इनटू VCF, and find WCF, density in vacuum, minus 0.0011, or from table 56, and then we can find the weight in air, GSV into WCF will give you weight in metric ton. सर एग्जाम में ये टेबल मतलब मिलेगी ना कि हमको लेके जाना है? अपना लेके बैग में रख लीजिए, बैग को दूर रख लीजिए, but normally the MMD they give you, because they don't want to use your books, because आपने उसके ऊपर हो सकता है अंदर कुछ फॉर्मूला कुछ ना कुछ लिख के रखा हो. सो दैट वाज द आइडिया. प्रीवियसली MMD थोड़ी गरीब होती थी, तो हमारे टाइम में वी हैड टू कैरी आवर ओन टेबल्स, नॉरिश टेबल, एवरीथिंग. बट आजकल बट ये चेंजेस एवरी डे, दिस रूल रेगुलेशन चेंज एवरी डे. सो बेटर अपने बैग में रख लीजिए. बैग तो आपने बाहर ही रखना, इन केस ही सेज कि नहीं भाई हमारे पास टेबल ख़त्म हो गया नहीं है, तो कह जी ठीक है फिर मैं बैग से निकाल लूँ, आप चेक कर लीजिए. तो पहले ये होता था, मैन पावर थी, चपरासी थे वहाँ पे कि ये लो भाई सबकी बुक चेक करो. सर्वेयर ने तो करनी नहीं है, तो जैसे आप एंट्री करोगे और बुक का ये जस्ट गोज थ्रू, अच्छा कुछ लिखा तो नहीं, चलो जी ओके. तो दोनों चीज़ें रखिए, ये भी रख लीजिए इन केस दे मोस्टली दे गिव यू देयर. अब हम लोग अमीर कंट्री होने वाले हैं, सब कुछ लॉट ऑफ मनी इज देयर सब डिपार्टमेंट्स के पास. चलो ये लिख लीजिए. एंड सेकंड इज योर अगेन सेकंड स्टेप इज, ये तो अलेज था, दिस इज वेट टू वॉल्यूम टू अलेज. फाइंड आउट द WCF
and then GSV weight divided by WCF gives me the GSV, and GSV divided by VCF gives me the GOV at that particular temperature. उस GOV को मैं एरिया से डिवाइड करता हूँ लेंथ बाय ब्रेड्थ, I get the ullage, height of tank, or I get the height of oil, and from height of tank you minus the height of oil, you get the ullage. So ये दो चीजें आपके काम आएंगी, इसको आप लिख लीजिए. जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे then you won't need, but just for reference you can write this. सर एक बार पिछला वाला दिखा दीजिए. चलो लिख लिया बच्चे. यस सर. चलो एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं मैं आपको. Yeah, this is the question. Volume of oil at 40 degree centigrade is 2456. Density at 15 degree 0.79. Determine the weight of oil loaded. So 1894.644. Okay, very good. 1894. Yeah, 1892 आना चाहिए बच्चे. What is the VCF you got? So 0.9765. फिर तो ठीक आना चाहिए. 2456 into 0.9765. सर 1892.00 आया है. Correct, correct, very right. Get familiarized with the table 54 खोलिए. Just find out the VCF. Check कीजिए yourself. वो सर वैक्यूम से एयर नहीं किया डेंसिटी. हाँ WCF नहीं किया ना, वही W. ये बच्चे एग्जाम में भी आई थिंक वन ऑफ द पास्ट बैचेस आई सॉ वन क्वेश्चन. वहाँ तो आप वैसे ही जल्दी जल्दी में हो. एंड फिर मैं आई हैड पॉइंटेड आउट कि प्लीज़ बी केयरफुल. जब आप GOV निकाल लेते हो, आपके पास अलेज आपने निकाल ली, GOV निकाल लिया, एंड GOV को आपने VCF से मल्टीप्लाई करके GSV and then multiply by this thing WCF also. So it is there in front of you. GOV is 2456, VCF 9765 from table 54, GSV is GOV into VCF 2398.284, weight in air 1892.
चलो हो गया बच्चे सबका? सर ये टेबल 54 में हाँ जी, सर ये फिगर्स के पहले ये 1 2 3 ये क्या लिखा है सर ये? okay, 1 minute. This is बच्चे difference basically. That is a difference in those figures just for your interpolation के लिए, कि अगर मेरे को इंटरपोलेशन करनी है तो ये जो आपका 1 2 या 0 दिख रहा है, ये देखिए 0119 और ये 0118, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 1 का है। लास्ट जो 4 डिजिट हैं उनके बीच में है, ये देखो 0122 एंड 0120। सपोज द डेंसिटी मेरे को इन बिटवीन दी है, ये आपकी है डेंसिटी 0.845 एंड ये 85 पे आ गया। सपोज आपकी डेंसिटी है 0.846, 847, 848, तब आपको जस्ट इंटरपोलेशन इजी करने के लिए, सो यू नो दैट। अब सपोज मेरी डेंसिटी थी इन दोनों के बीच में लाई करती है, सो आई कैन वर्बली ओनली अप्लाई किया, ठीक है ये 0122 है, ये 0120 है, दैट मीन्स डेंसिटी दोनों के बीच में है, सो करेक्शन फैक्टर 1.021, इन दोनों का डिफरेंस है। ओके सर वैसे करवाया तो था, याद नहीं आ रहा। अगर डेंसिटी भी बीच में है और टेम्परेचर भी बीच में हो तो पहले डेंसिटी निकालेंगे ना? कुछ भी कर सकते हैं, एबीसी टेबल की तरह है, वो एक ही बात है। जैसे सपोज आप यहाँ कह रहे हो कि ये 0.5 है, ये 1 डिग्री है, मेरा टेम्परेचर 0.75, इन दोनों के बीच में है, तो मैं इसको लेता हूँ 15 एंड 19, सो 17 हो गया 1.0117। सिमिलरली मैं इसको भी ले लेता हूँ, ये 18 एंड 14 है, इसका 16 हो गया। अब ये 17 एंड 16 में मैनिपुलेट करना है, 17 एंड 16 में आप दोनों भी रख सकते हो, या 17 रख लो 16, 1 का फर्क है, नहीं तो आप 5th डिजिट पे जाओगे कि 01165, इजंट इट? ठीक है, मतलब पहले टेम्परेचर पे कर लें फिर बीच में डेंसिटी कर लेंगे। एनीथिंग, यस, एनीथिंग। टाइम नहीं वेस्ट करना आपने उस पर, ठीक है। एंड आई थिंक आई विल सजेस्ट दैट कई बार कैलकुलेटर कहीं गलत बटन प्रेस हो गया तो गलत फिगर दे देते हैं, सो ये मेंटली इजी है। लास्ट डिजिट को पकड़िए, लास्ट दो को पकड़िए, इनका डिफरेंस लीजिए। जैसे मैंने लिया 19 और 15, 4 का डिफरेंस है, तो यार बीच में आया 2, 15 का 17 बन गया। सिमिलरली लास्ट वाले डिजिट्स को पकड़िए, 18 और 14, इसमें डिफरेंस 4 का है, इसका 4 मीन्स एवरेज 2, 14 और 2 16, ये 17 था, ये 16, 17 और 16, ठीक है। आप 17 भी ले सकते हो, 16 भी ले सकते हो, एक आधे टन का फर्क पड़ेगा, ज़्यादा नहीं पड़ेगा। चलो एक और करें छोटा सा। सिमिलर टाइप है जो हमने डेंसिटी करेक्शन से किया था। टैंक डायमेंशंस, डेंसिटी इज गिवन, loading temperature 36, minimum ullage 1.2 required at all times, and expected temperature 44. Ullage pipe 1 meter above the deck. Calculate the ullage at load port and quantity of oil.
सर इसमें जो मिनिमम एलिज 1.2 मीटर है वो 1 मीटर एलिज पाइप का काउंट करके है ना? करेक्ट बच्चे, करेक्ट, यस। तो उसको मैंने जैसे आपको बताया था, वेरी इजी मेथड, 12.5 इज द हाइट ऑफ टैंक, सो 12.5 प्लस 1, 13.5 minus 1.2 will give you the height of oil. सर इसमें 36 डिग्रीज पर डेंसिटी लेके WCF बदल जाएगा ना? Yeah, of course. WCF सेम रहेगा बच्चे, VCF बदल जाएगा। WCF सेम रहेगा सर? या वो तो आपको डेंसिटी माइनस 0.0011 करना है, WCF सेम। सर एक क्वेश्चन दिखाइए सर। So quantity is 3479.4. How much you got? 3479.4, correct. And what is LH? LH अभी ढूंढ रहा हूँ सर। So 1.285. Okay, good. Yes sir, 1.285. Very good.
चलो ये देखिए, दिस इज व्हाट इट इज, मैक्सिमम वॉल्यूम एट 44 लेंथ ब्रेड्थ इनटू, please be very careful about adding the height of your alleged pipe, whatever method suits you, यानी कि ऐसे ही करना है if you are familiar। और आपको दूसरा मेथड इजी है कि 1.2 माइनस 1.2 इसमें से माइनस करें, बट आई फाउंड दिस इज द इजियर मेथड। डेंसिटी आपको दी है, वी कैलकुलेट द VCF एट 44,9754, GSV आपने निकाल लिया 4223, यही है। Yes sir, ये Yes, sir. Yeah, then you got mass of oil, no need to calculate in vacuum, this is just for reference कि आपको दिखाने के लिए, but otherwise no need, so we can straight away calculate mass of oil in air, GSV into WCF 0.825 minus 0.011, आपके पास 3479 टन मास आ गया। अब इस मास को मैं लोड पोर्ट पे ले जाता हूँ, where the temperature is 36 डिग्री सेंटीग्रेड। GSV मेरे पास पहले से है, मैंने निकाला हुआ सेम GSV 4223.09, VCF at 369822, therefore GOV at 36 will be GSV divided by DCF at 36 will give you so many meter cube of this tonnage at 36, 4299.62. Rest is, I think, simple mathematics. GOV divided by area gives me the height of oil and then the ullage. So I hope clear to everyone. जो हमने किया सो वही क्वेश्चन में अगेन वो डेंसिटी के साथ मेंशन नहीं होगा कि वैक्यूम है या एयर है। या कोई बात नहीं, अगर मोस्टली सी समटाइम यस इन द क्वेश्चन, जैसे इफ आई रीड द क्वेश्चन हियर कि डेंसिटी एट 15 डिग्री सेंटीग्रेड 0.8250 एट 15 डिग्री सेंटीग्रेड, इस पर कुछ नहीं लिखा हुआ, इट इज अंडरस्टूड इट इज इन वैक्यूम। एंड अगर आपको ज्यादा है कि यस नहीं यार आपका माइंड नहीं मानता, आप एक लाइन लिख सकते हो, एक रिमार्क लिख सकते हो
Understand the density given at 15 degree centigrade is in vacuum. अदरवाइज इवन अगर आप टेबल पे देखिए वहां पे भी हो डेंसिटी एट 15 डिग्री सेंटीग्रेड ही लिखता है. इट इज अज्यूम्ड इट इज इन वैक्यूम. अगर एयर में होगा ही विल मेंशन, समटाइम दे मेंशन डेंसिटी 0.8250 8270 जो भी है एट 15 डिग्री सेंटीग्रेड इन एयर. तब आप कैसे करोगे? मेरे को तो डेंसिटी इन वैक्यूम चाहिए टू एंटर टेबल 54. डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हैं. प्लस करेंगे बच्चे, मल्टीप्लाई नहीं. फिर आप जो आपका बुओयेंसी फैक्टर जो माइनस कर रहे हैं उसको प्लस कर दूंगा तो आपको डेंसिटी इन वैक्यूम मिल जाएगी. नहीं सर हाँ, हमें VCF निकाल. अच्छा नहीं, VCF निकालना. या वीसीएफ के लिए तो आपको टेबल 54 एंटर करना है. राइट सर राइट. नहीं मैं वो उसके लिए वेट की बात कर रहा था सर, फिर डायरेक्टली मल्टीप्लाई. करेक्ट करेक्ट. फिर तो आपके पास सीधी डेंसिटी इन एयर आ गई, वो ले लेना. बट वैक्यूम के लिए आपको उसको प्लस कर देना है. तो कई बार होता है एग्जामिनर ट्राइज टू कुछ ना कुछ इधर से घुमा फिरा के डाल देते हैं. सो डू नॉट गेट कंफ्यूज कि ठीक है एयर में दिया तो मैं वैक्यूम में निकाल सकता हूँ, वैक्यूम में दिया तो मैं एयर में निकाल सकता हूँ, जिसे हम WCF कहते हैं. चलो ओके, आज के लिए इनफ. तो वी मीट नेक्स्ट वीक. हैव गुड दिवाली, हैप्पी दिवाली एंड सेफ दिवाली. Thank you.